اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ معتقدین خفیہ طور پر وہاں آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ادھر ابن زیاد برابر اس تجسس میں تھا کہ کسی طرح پتا چلے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کسی شخص نے پناہ دے رکھی ہے۔ آخر اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کر، ان سے ملاقات کرنا اور انہیں یہ مال دے کر بتانا کہ تم بھی اہل بیت کے محبین میں سے ہو۔ چنانچہ وہ غلام جامع مسجد میں حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس آیا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ غلام نے لوگوں کو کہتے سنا کہ یہی شخص حضرت امام حسین برین کے نمائندہ کے طور پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس غلام نے حضرت مسلم بن اوجہ سے کہا کہ بندہ خدا، میں شمالی ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص انعام ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، میرے پاس یہ 3000 درہم ہے، میں اہل بیت کے اس فرد کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جو میری معلومات کے مطابق مکہ سے کوفہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور نواسائے رسول ہے، یہ امام حسین کے لیے بیعت لیتے ہیں۔ شنیب یہ بھی ہے کہ آپ وہ گھر جانتے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ اس مقصد کے حصول میں تعاون فرمائیں اور مجھے ان کی خدمت میں لے چلے۔ مسلم بن اوجہ بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اس مکار غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، جو لگاتار 15 دن وہاں مقیم رہ کر مسلم بن عقیل کی نشست و برخاست اور سرگرمیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتا رہا۔ غلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے حکم پر ابن زیاد کا دیا ہوا تمام مال عرب کے مشہور شاہوار ابو تمامہ عامری کو دے دیا، جو امام کی جانب سے اموال کی تحصیل اور اسلحہ کی خریداری کا ذمہ دار تھا۔ غلام نے واپسی پر حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ اور اس گھر کے مالک کا پتہ اور آپ کی سرگرمیوں کی مکمل تفصیل ابن زیاد کو بتا دی۔ باپ کی ہانی بن عروہ کوفہ میں ایک مقتدر شخصیت تھے، ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے سے تعلقات تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے آنے سے پہلے ان کا ابن زیاد کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی اپنے گھر آمد کے بعد انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے ابن زیاد سے میل ملاپ ترک کر دیا۔ ابن زیاد چونکہ تمام حالات سے باخبر ہو چکا تھا، سو ایک دن اس نے ہائی کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ دوسرے امراء کے ہمراہ ہانی ہمیں ملنے کیوں نہیں آتا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بعد چند امراء ہانی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ابن زیاد کو آپ کے بارے میں کچھ بدگمانی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلے تاکہ صفائی ہو جائے اور بدگمانی دور ہو۔ ہائی اندر گئے، حضرت مسلم سے بات کی اور تیار ہو کر امراء کے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ دارالامارت پر پہنچ کر جب ہانی نے ابن زیاد کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہائی اس خلاف معمول سلوک پر منتجب ہوئے اور دل میں کھٹکاؤ خوف محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا کہ اے ہانی، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اٹھا پر وہ یعنی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو حمص شام کے مسافر کے روپ میں ہانی کے گھر قیام پذیر رہا تھا، اور ابن زیاد نے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ہانی نے کہا ہاں۔ غلام کو دیکھ کر نادم ہوئے اور کہا کہ اے امیرہ، خدا آپ کا بھلا کرے، خدا کی قسم میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ وہ اپنے آپ میرے گھر میں آ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ پھر انہیں یہاں لے آؤ۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤں نہ اٹھاتا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ جب ہانی کو ابن زیاد کے قریب لایا گیا تو اس نے ہانی کے چہرے پر نیزے سے وار کیا، جس سے ان کا چہرہ اور ناک زخمی ہو گئے۔
हानी इब्ने ज़ियाद पर हमला करने के लिए एक सिपाही से तलवार छीन कर सोने लगे तो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अब तुमने अपना खून मुझ पर हलाल कर दिया है क्योंकि तुम जरूरी हो, खारिजी हो। इसके बाद इब्ने ज़ियाद के हुक्म से उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। हानी की कौम बनी मदी ये समझकर कि उन्हें कत्ल कर दिया गया, कसरे अमारत के दरवाजे पर जमा हो गई। इब्ने ज़ियाद ने उनका शोरो खूनमा सुना तो आजी शरीफ से जो उसके पास मौजूद था कहा कि आप उन लोगों के पास जाएं और उनसे कहें कि अमीर ने उन्हें सिर्फ मुस्लिम बिन अकील के बारे में पूछगिछ के लिए रोक रखा है। काजी शरीफ ने उन्हें जाकर कहा कि तुम्हारा सरदार जिंदा, तुम वापस चले जाओ खुद को और अपने सरदार को हलाकत में ना डालो। इस पर दो सब अपने घरों को चले गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब यह खबर सुनी तो सवार होकर निकल आए और अपने हामियों को मदद के लिए बुलाया। आता जाता कोई 4000 आपके गिर्द जमा हो गए। आप उन्हें लेकर इब्ने ज़ियाद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आप लोगों को हानि के मामले की तरफ तवज्जो दिलाते रहे और उन्हें इख्तिलाफ व इंतशार से इज्तिनाब की तलकीन करते रहे। दरे असनात असरे इमारत के मुहाफिजीन ने आपको देख लिया और चिल्लाए कि मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं। इब्न ज़ियाद और इसके साथी भागकर महल में दाखिल हो गए और दरवाजा बंद कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील महल के दरवाजे पर पहुंचकर अपने लश्कर समेत ठहर गए। मुख्तलिफ कबाइल के सरदार जो कि इस वक्त इब्ने ज़ियाद के पास मौजूद थे, वो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से महल की दीवारों पर चढ़ गए और अपनी अपनी कौम के उन आदमियों को जो हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ थे इशारों से वापस चले जाने को कहा और इशारों ही में कुछ वादे किए और कुछ डराया धमकाया। अलावा अजी इब्ने ज़ियाद ने बास सरदारों को महल से बाहर भेज दिया ताकि दूसरे लोगों को मुस्लिम बिन अकील की हिमायत से बाज और इशारों से मानने वाली बात हो गई रख सकीं और साथ वालों को बरगश्ता कर सकीं जिसमें वो कामयाब रहे। उन्होंने आपके साथियों को बरगश्ता करने के लिए कुछ ऐसे हरबे आजमाए कि फौज की शाम से रवानगी की खबर सुनाई और वापस न जाने की सूरत में शामी फौज से मुकाबला और अंजाम से डराया। नतीजा ये कि रफ्ता रफ्ता लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और नमाज मगरिब तक सिर्फ आदमियों की मुट्ठी भर जमीयत आपके साथ रह गई। आपने उन्हीं में अफराद के साथ नमाज मगरिब अदा की। रवानगी पर 10 रू गए और थोड़ा सा फासला तय हुआ तो आप अकेले रह गए। अब सूरत हाल ये थी कि कोई रहनुमा और हमदर्दी जताने वाला भी साथ न रहा। आखिर अंधेरा छा गया। आप परेशान हाली में चलते हुए तौआ नामी एक औरत के दरवाजे पर जा पहुंचे जो अपने घर के दरवाजे पर बैठी अपने बेटे बिलाल का इंतजार कर रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उस औरत से कहा कि मुझे पानी पिलाएं। उसने आपको पानी पिलाया और कुछ देर के लिए अंदर चली गई। दोबारा बाहर जो निकली तो अजनबी को बदस्तूर दरवाजे पर पाया। उसने पूछा कि क्या तुमने पानी नहीं पिया? आपने फरमाया पी लिया है। तो वो बोली बाआफियत चलो और अपने घर को जाओ, तुम्हारा मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा रहना मुनासिब नहीं। इस पर आप जाने लगे तो फरमाया कि ए अल्लाह की बंदी, इस शहर में मेरा कोई घर और कराबतदारी नहीं है। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगी जिसका कल हम आपको इतना अजर भी देंगे जो आपको किफायत करेगा? उसने कहा कि बंदा खुदा वो क्या एहसान है? आपने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील हूं और इस कौम ने मुझसे झूठ बोला और धोखा दिया है। उसने कहा कि आप मुस्लिम हैं? आपने फरमाया हाँ। उस औरत ने कहा आप अंदर आ जाएं। फिर उस औरत ने आपके लिए एक अलहदा कमरे में बिछोना बिछा दिया और रात का खाना पेश किया, मगर आपने खाना न खाया। थोड़ी देर बाद उस औरत का बेटा भी आ गया। जब उसने अपनी मां को बार बार उस कमरे में आते जाते देखा तो पूछा कि मामला क्या है। उस औरत ने कहा कि बेटा इस बात को छोड़ो, मगर जब बेटे ने इसरार किया तो उसकी मां ने राज फाश न करने का अहद लेकर उसे हजरत मुस्लिम बिन अकील का हाल बता दिया। उस पर वो सारी रात खामोशी से लेटा रहा और कोई बात न की। इधर इब्ने ज़ियाद ने उमरा से हजरत मुस्लिम बिन अकील का मुतालबा किया और ऐलान किया कि जो शख्स उन्हें ले आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अला सुबह
उस बुढ़िया के बेटे ने भाग भाग अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशद को इमाम मुस्लिम की अपने घर मौजूदगी की खबर जा पहुंचाई, जिसने इब्ने ज़ियाद बता दिया उमर बिन हरीफ मखरवी को, जो कि पुलिस अफसर था। 70 सवारों के साथ अब्दुर्रहमान और मोहम्मद बिन अशद के हमरा हजरत मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया। हजरत मुस्लिम को इस वक्त खबर हुई जब इस मकान का घेराव कर लिया गया जिसमें आप मौजूद थे। जब वो लोग मकान में दाखिल हुए तो आप तलवार हाथ में लेकर खड़े हो गए और 3 बार उन्हें मकान से बाहर धकेला, मगर आपके ऊपर और नीचे के दोनों होंठ जख्मी हो गए। इसके बाद वो पत्थर बरसाने लगे और आग के गोले अंदर फेंके, जिससे आपका दम घुटने लगा। लिहाजा आप कवार लेकर बाहर निकल आए और उनसे मुकाबला करने लगे। इस पर अब्दन अर्रहमान ने आपको पनाह दे दी और इस तरह से आपको गिरफ्तार करना आसान हो गया। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने आपसे तलवार छीन ली। इस वक्त आपने समझ लिया कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कुछ सोचकर आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। जब आपकी आंखों से आंसू रवाई हुए तो एक मुशख्खस अब्दुल्ला बिन अब्बास अलमी ने कहा कि जिस चीज के तुम तलबगार हो उसके तलबगारों पर ऐसी मुसीबत आन पड़ती है तो वो रोया नहीं करते। आपने जवाब दिया, बखुदा मैं अपने लिए नहीं रोता और ना अपनी मौत पर रोता हूं, बल्कि मैं तो हजरत इमाम हुसैन और आले इमाम के लिए रोता हूं। फिर आप मोहम्मद बिन अशद की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा कि ए अल्लाह के बंदे, ख्याल है कि तुम मुझे पनाह देने का अहद पूरा ना कर सकोगे। क्या तुम भलाई कर सकते हो कि मेरी तरफ से इमाम हुसैन की तरफ किसी आदमी को भेज दो, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो गुज़श्ता कल या आज अपने अहलो अयाल को साथ लेकर तुम्हारी तरफ रवाना हो चुके होंगे। मुझे उनकी बहुत फिक्र है। कासिद उन्हें जाकर कहे कि मुझे इब्ने अकील ने भेजा है, जो कौम के हाथों गिरफ्तार है और जो मालूम नहीं सुबह या शाम कत्ल हो जाएगा। आप अपने अहलो अयाल समेत वापस चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अहले कूफा आपको भी धोखे दे, या आपके वालिद के वही असहाब हैं जो इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे, खा उनकी तबई मौत की सूरत में वाक़े होता, खा उनके कत्ल की सूरत में। अहले कूफा ने आपसे और मुझसे झूठे दावे किए थे और दरोग गो की कोई राय नहीं होती। इस पर इब्ने अशद ने कहा कि खुदा की कसम मैं ये काम जरूर करूंगा। दूसरी तरफ अहले कूफा के खतूत और वफूद के बाद हजरत इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को हालात से आगाही के लिए कूफा भेजा था। आपने अहले कूफा की बेपनाह अकीदत व मोहब्बत को देखते हुए इमाम आली मकाम को लिख भेजा था कि आप तशरीफ ले आए। यहाँ हजारों अफराद आपकी तरफ से मेरे हाथ पर बैत कर चुके हैं। चुनांचे इमाम आली मकाम ने कूफा जाने का अज़्म समीम कर लिया। उधर कूफा में जो इनकलाब बर्पा हो चुका था उससे आप अभी तक लाइल्म थे। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैर, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर और दीगर साथी मना करते रहे, लेकिन इमाम आली मकाम सबको ये जवाब देते रहे कि अब सिक्का वफा और है, वफाई का नहीं। मसला इस दावत का है जिसमें मुझे कलमे हक बुलंद करने, जुल्म जुब्बा के खिलाफ जंग, शरीयत मुस्तफवी के एहया और दीन इस्लाम की कदरों को पामाली से बचाने के लिए मैदान अमल में आने को कहा गया है। सो मैं इन मकासद के लिए अपने इरादा और मौजूदा इक़दाम से पीछे ना हटूंगा। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील जख्मी हालत में खून आलूद चेहरे और लिबास के साथ तशना लब कसरे इमारत के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां उमरा और कुछ दूसरे लोग जिनसे हजरत मुस्लिम की जान पहचान थी, इब्ने ज़ियाद से मिलने की इजाजत के मुंतजिर थे। वहां ठंडे पानी का एक मटका रखा था। हजरत मुस्लिम ने उसमें से पानी पीने का इरादा किया तो एक आदमी ने कहा कि खुदा की कसम, जिस्म का खोलता हुआ पानी पीने से पहले तो उस मुल्क के पानी ना पिएगा। आपने उसे कहा कि खोलता हुआ पानी पीने और हमेशा के लिए भड़कती हुई आग में दाखिल होने का तो ज्यादा हकदार है। इसके बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। जब आप उसके सामने पेश हुए तो आपने सलाम ना किया। दरबान ने पूछा, क्या तुम अमीर को सलाम नहीं करते? आपने कहा, नहीं, अगर उसका इरादा मुझे कत्ल करने का है तो मुझे उसकी हाजत नहीं। अब इब्न ज़ियाद आपसे मुखातब हुआ कि ए इब्न अकील, लोगों में इत्तेफाक और यकजहती थी और उनकी बात एक थी। तुम आए और उनमें फूट डाल दी, उनको एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। आपने कहा, हरगिज नहीं, मैं इस काम के लिए नहीं आया
बल्कि मेरा आता तो इसलिए है कि अदलो इंसाफ कायम हो और अल्लाह की किताब का हुक्म नाफिज हो। हजरत मुस्लिम बिन अकील और इब्न ज़ियाद के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई, जिसमें इब्न ज़ियाद मुख्तलिफ इल्जाम लगाता रहा और आप उन इल्जामात के मस्तक जवाब देते रहे। भला आखिर आपने जान लिया कि इसने आपको कत्ल करने का हतमी फैसला कर लिया है, तो आपने उसे कहा कि मुझे वसीयत करने की मोहलत दो। इब्न ज़ियाद ने कहा कि आप वसीयत कर सकते हैं। आपने हाजिरीन पर निगाह डाली तो उनमें उमर बिन साद बिन अबी वकास भी मौजूद था। आपने उसे कहा कि ए उमरा, तुमसे मेरी कराबतदारी है, मेरे साथ महल के एक गोशे में चलो ताकि तुमसे अलहदगी में बातें कर सकूं। लेकिन उमर बिन साद ने आपके साथ अलहदगी में जाने से इनकार कर दिया। आखिर इब्ने ज़ियाद ने इसकी इजाजत दी और वो इब्ने ज़ियाद के करीब ही आपके साथ अलहदगी में खड़ा हो गया। हजरत मुस्लिम ने उससे कहा कि कूफे में मैंने 700 दिरहम कर्जा देता है, तुम मेरी तरफ से ये कर्ज अदा कर देना। इब्ने ज़ियाद से मेरी लाश मांग कर दफन कर देता और हजरत इमाम हुसैन को पैगाम भेज देता कि वो कूफा का कस्द न करे। मैंने उनको लिखा था कि लोग आपके साथ है और मेरा ख्याल है वो रवाना हो चुके होंगे। उमर बिन साद ने इमाम मुस्लिम की तमाम वसीयतें इब्ने ज़ियाद को बता दी। इसने तमाम वसीयतों पर अमल करने की इजाजत दे दी। इसके बाद इब्ने ज़ियाद के हुक्म से हजरत मुस्लिम बिन अकील को असर अमारत के ऊपर ले जाया गया। वो तकबीर तखलील व तस्बीह व इस्तिग़फ़ार और शरीफ पढ़ते हुए ऊपर चढ़ गए और दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तू हमारे और उस कौम के मुसापास मुदासा फरमा दे। बाद में इब्ने ज़ियाद ने कुछ दूसरे लोगों की बेइज्जती करते थे, लोगों को भी कत्ल किया और सारे वाकयात शाम की तरफ यजीद को लिख भेजे। रात को बड़े भाई मोहम्मद बिन मुस्लिम ने एक ख्वाब देखा और बेदार होकर छोटे भाई इब्राहिम को जगाते हुए कहा, भाई अब सोने का वक्त नहीं रहा, उठो और तैयार हो जाओ, अब हमारा वक्त भी करीब आ गया है। मैंने अभी ख्वाब में देखा है कि हमारे अब्बा जान रसूल अल्लाह अलैहि, हजरत अली, हजरत फातिमता अज़-ज़हरा और हजरत हसन मुज्तबी के हमराह बरिश्ते बरे में मिल रहे थे कि अचानक हुजूर अकरम में हमने हम दोनों की तरफ देखकर हमारे अब्बा जान से फरमाया कि मुस्लिम, तुम चले आए हो और इन दोनों बच्चों को जालिमों में छोड़ आए हो। अब्बा जान ने हमारी तरफ देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल मेरे ये बच्चे भी आने वाले हैं। इससे आगे जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ैनुल आबिदीन, वस्सलाम।